Good morning everyone. Welcome to our topic basic postulate and theorems of Boolean algebra. That is your unit 2 topic, and here I am explaining brief summary of this. Like what we have done basically, what is the main concept of this chapter. So here I am discussing one question, like I have to simplify the expression in the form of Boolean function using Carnot map. If I have a function like a, b, c, d, this is a, b, c, d, and this is sum of product sign, that is summation sign, and here 1, 2, 3, 11, 12, 14, 15, that is a decimal number position. If there is a mention a, b, c, d, 4 variables are there, so that means you have to go with 4 rows and 4 columns matrix table. So here we apply with the 4 variables, 2 variables in the row and 2 variables in the column wise. So start with the complement, then complement removed from D, then C, then again appear on the D. Similarly in the rows wise, we have to go in the same position. And connected decimal points are 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15. 14 and 15. So whatever this decimal number position appear here, so I have to mark in this 1. So whatever decimal number mark it here, so at same position I will mark it here. Then I go with finding the pair or quad. So here no proper quad is there, so I go with the pair, like this pair 3 2, 1 3, 12 14 and 15 11. So basically 1 2 3 4 pairs are there. So if we have 4 pairs, like in this first pair I go with 1 3. So I note down the rows and note down the columns. Column will be added with each other. If single row is there and single column is there, you write as it is. But if it is 2 rows and 2 columns are used in this min term, these are 1 3 are the min terms. Okay. So here C complement D and CD are the 2 columns that will be added, because this is sum of product. Product means you have to multiply row and column to each other for each pair to find the term. So from the row of these min term, I got A complement, B complement here, and from here like term obtained is A complement, B complement, D. Similarly from pair min term 3 and 2, I get the row A complement, B complement, and column is CD plus CD complement. If you take C common and D plus D complement become 1, and multiplication of row and column give me the term A complement, B complement, C. Similarly min term 12 14, my rows is AB is used in 12 and 14 pair, and column is C complement D complement plus CD complement. If you take D complement, so C and C complement become 1, and my term will be AB D complement. And fourth pair is 15 and 11. So there are 2 rows are used. So I add these 2 rows AB and AB complement, and 1 column is used. So from this last pair, term obtained is ACD. And expression is you have to add all 4 terms got from the 4 pairs, like A complement, B complement, D, A complement, B complement, C, AB, D complement, and AC, D. Next is, I have another question. If I have 2 functions given, one in the form of sum of product and another in form of this pi means product of sum. So this decimal number position shows that you have to represent in the Carnot map with the 3 variable form. 3 variable means 2 rows and 4 columns. You have to use the matrix, and in this 1 4 5 6 7 you have to represent 1, and 0 2 3 position you have to represent as 0. First I represent this is X complement X, Y complement Z, Y complement Z, YZ, and YZ complement. So when I mark this 1, 4, 5, 7, 6 position as 1, so it will be 1 quad and 1 pair. So when you solve that one pair is 1 and 5, row connected with the pair is X complement plus X, that become 1, and column is Y complement Z.
and term obtained is by multiplying row and column y complement z. And here if you look at this quad 4 5 7 6, 4 5 7 6, row is only single x, and column, if all columns are used, so that means if you add all the columns here, so you will get 1 because all will be cancelled, and multiplication of row and column gave me x, and my required result is x plus y complement z. Now go with the next, when that was the product of sum 0 2 3. Positions of the decimal number will be same, only difference is that complement changes into actual variable and actual variable changes into complement. That means x is represented as 0 and x complement is represented as 1, exactly opposite to sum of product. And where I'm using 1 in SOP, here I'm representing 0 in the same decimal position because this is product of sum, that is exactly opposite to sum of product here. So I got two pairs like this 3 2 and 2 and 0 positions pair, so we make the pair of zeros here. So in this first pair is 0 and 2, row is x and column is y plus z and y complement plus z. Though I am using product of sum, तो जब आपने यहाँ पे कॉलम पिक करने हैं उनको आपने मल्टीप्लाई करना है. यू हैव टू मल्टीप्लाई द कॉलम्स कनेक्टेड विद the max term. So these are 0 2 is the max term, and after that you have to add row and column to obtain the term. Similarly 3 and 2 pair, row is x and column, two columns are used here, y complement plus z complement and y complement plus z. You have to multiply this one, and after getting simplified by distributed method you will get y complement, and when you add row and column you will get the term as x plus y complement. Now result is when you multiply these two, because whatever you get it here row and column added, that's product of sum. Sum means you have to add the row and column, and product means whatever by term obtained by adding row and column you have to multiply. Y plus z multiply x plus y complement. If there is a thing that you need to reduce further, then you apply with distributive law here, x into x, x y complement x z and y complement z. Now if you take here x common, so x into x give me 1x, so 1 plus y complement plus z plus y complement z. 1 plus y complement give me 1, 1 plus z give me 1, so whole term connected consider as 1, and my required answer is x plus y complement plus z, exactly as my previous sum of product form. Next my question is, state the dual form of the following Boolean expression. Duality means you have to just change the multiply with the plus and plus with the multiply and 0 with the 1. No change in variable, no change in the complement. Suppose I have the expression is x y complement x y complement x into y complement z plus x complement z complement. So here dot changes to plus, here also multiply between that changes to plus, and this dot changes to plus, but this plus changes to dot and this dot changes to plus. So that is a duality. So next is, what is the application of Boolean algebra in computer science. Computer science में Boolean algebra का रोल क्या है. Computer understand machine language which is based on binary logic, that is zeros and 1. The electrical circuits are a physical manifestation of two value Boolean logic. The processor of the computer work on Boolean algebra. So basically what does it mean कि जो machine language है कंप्यूटर की वो 0 1 को ही अंडरस्टैंड करती है. तो 0 1 को अगर फिजिकली चेक करोगे तो वो इलेक्ट्रिकल सर्किट में सिग्नल्स को यूज करता है, जिसमें सिग्नल आ रहे हैं तो 1, सिग्नल नहीं आ रहे तो 0. तो जो कंप्यूटर का प्रोसेसर है वो इसी 0 1 के लॉजिक पर वर्क करता है, इसीलिए जो वो लॉजिक है वो बुलियन अलजेब्रा को वेरीफाई करता है. सो दैट्स वाई जो आपका बुलियन अलजेब्रा है वो मशीन लैंग्वेज को प्रेजेंट करने के लिए इजी फॉर्म में हम उसको यूज करते हैं. नेक्स्ट इज मेरे पास एक एक्सप्रेशन है यहाँ पर, उसको मुझे रिड्यूस करना है सिंप्लीफाइड फॉर्म में.
ए बी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी सी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए इंटू सी कॉम्प्लीमेंट प्लस बी इंटू सी। सबसे पहले आपने यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे ए इंटू सी, यहाँ पे मैंने कॉम्प्लीमेंट्री लॉ अप्लाई किया कि इंटू 1 करके बी प्लस बी कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि यहाँ पे मेरा ए बी था, यहाँ पे ए सी था, तो मुझे यहाँ पे बी लेना था ताकि मैं बी कॉमन ले सकूँ। उसके बाद मैंने इसको ए सी कॉम्प्लीमेंट बी प्लस बी कॉम्प्लीमेंट को डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से ओपन किया। ए डॉट यहाँ पे आ जाएगा ए, जैसे ये वाला था, ये टर्म्स तो आपके एज इट इज ही रहेंगी, तो यहाँ पे ए डॉट सी कॉम्प्लीमेंट बी एंड ए डॉट बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट। फर्स्ट आई ओपन दिस बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, उसके बाद मैंने लगाया यहाँ पे एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ के किसी भी ऑर्डर में हम उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं या चेंज कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे था ए बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट, तो मैंने इसको यहाँ पे फर्स्ट पे शिफ्ट किया और बाकी सारी टर्म्स को पीछे शिफ्ट कर दिया ताकि मैं कॉमन ले सकूँ। यहाँ पे जो आपकी फर्स्ट 2 टर्म्स थी ए डॉट बी कॉम्प्लीमेंट ए डॉट बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पे मैंने एब्जॉर्प्शन लॉ अप्लाई किया, ए प्लस ए डॉट बी इज इक्वल टू ए होता है, तो यहाँ पे ए की जगह पे ए डॉट बी कॉम्प्लीमेंट है, तो ए डॉट बी कॉम्प्लीमेंट इसका एब्जॉर्प्शन लॉ में आ गया, अदर 3 टर्म्स एज इट इज। उसके बाद मैंने बी और सी, बी सी इन दोनों टर्म में बी सी कॉम्प्लीमेंट है, जब मैंने बी सी कॉम्प्लीमेंट दिया तो ए कॉम्प्लीमेंट प्लस ए 1 के इक्वल हो गया, तो मेरे पास रिक्वायर्ड टर्म आ गई ए डॉट बी कॉम्प्लीमेंट प्लस बी डॉट सी प्लस बी सी कॉम्प्लीमेंट। उसके बाद इन दोनों टर्म से बी कॉम्प्लीमेंट बी कॉमन लिया, सी प्लस सी कॉम्प्लीमेंट बिकम 1 ए इंटू बी कॉम्प्लीमेंट प्लस बी। अब यहाँ पे मैंने फिर से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई किया, जिसमें पहले बी को यहाँ पे शिफ्ट कर लो, दैट विल बी इजियर। ए प्लस बी डॉट बी प्लस बी कॉम्प्लीमेंट, या ए प्लस बी पहले जाएगा, बीच में डॉट और बी कॉम्प्लीमेंट प्लस बी, जो मेरा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ था। ये अगेन 1 के इक्वल हो गया, तो लास्ट में मेरा रिड्यूस एक्सप्रेशन आ गया ए प्लस बी फॉर्म। उसके बाद मेरा नेक्स्ट है कि मेरे को ये प्रोडक्ट ऑफ सम का एक्सप्रेशन दिया हुआ है, मुझे सम ऑफ प्रोडक्ट में चेंज करना है। पहले तो मुझे क्या लिखना है कि ये जो मेरे नंबर्स थे एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई जेड कॉम्प्लीमेंट, इनका बाइनरी नंबर्स क्या बनता है। सम ऑफ प्रोडक्ट जो आपका प्रोडक्ट ऑफ सम में कॉम्प्लीमेंट को हम 1 कंसिडर करते हैं, और विदाउट कॉम्प्लीमेंट वाले वेरिएबल को हम 0 कंसिडर करते हैं, दैट इज ऑपोजिट टू सम ऑफ प्रोडक्ट। तो अगर यहाँ पे y कॉम्प्लीमेंट y, x कॉम्प्लीमेंट y, z कॉम्प्लीमेंट है, तो दैट इज 101। 101 का डेसिमल फॉर्म है 5 और मैक्स टर्म आ गई m5। इसी तरह से सेकेंड एक्सप्रेशन का बाइनरी नंबर 010, डेसिमल 2 एंड मैक्स टर्म 2। थर्ड वाले की जो टर्म है x y z कॉम्प्लीमेंट 001, डेसिमल इज 1 एंड मैक्स टर्म 1। उसके बाद जो मेरी फोर्थ वन है दैट इज 000, मैक्स टर्म 0, तो मेरी मैक्स टर्म आ गई 0 1 2 5। अब इसमें देखना मेरे नंबर कौन से मिसिंग है, क्योंकि मेरे पास 3 वेरिएबल यूज हो रहे हैं। 3 वेरिएबल मीन्स मेरी टर्म्स आएंगी 7 नंबर तक। ओके, तो 0 से लेके 7 तक कौन से नंबर मिसिंग हो रहे हैं इसमें, वो आपने नोट डाउन करने हैं। 0 1 2 अवेलेबल है, 3 नहीं है, 3 4 5 है, 6 एंड 7। तो जो आपके नंबर मिसिंग थे दैट मीन्स दैट इज योर मिन टर्म्स, m3 m4 m6 एंड m7। अब इसको आपने डेसिमल में कन्वर्ट कर देना। m3 जो आपकी डेजिग्नेटेड टर्म थी मिन टर्म की 0 1 1, और ये आ गया आपका, क्योंकि अब जब हमने SOP वाली फॉर्म में जाना है तो वहाँ पे कॉम्प्लीमेंट को 0 बोलते हैं और एक्चुअल नंबर को हम वेरिएबल कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पे x कॉम्प्लीमेंट y z, इसी तरह से 4 का डेसिमल नंबर x y z कॉम्प्लीमेंट, देन 6 1 1 0 x y z कॉम्प्लीमेंट एंड 1 1 1 x y z। तो SOP में हम ये जो 4 टर्म्स निकली हैं इनको हम ऐड करेंगे, दैट इज माय रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट इज सिंप्लीफाई द फ्लोइंग एक्सप्रेशन एंड कन्वर्ट इनटू द कैनोनिकल POS फॉर्म। पहले तो आपने इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना है और PS फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले मैंने इसको x डॉट वाई जेड, एक y प्लस z कॉम्प्लीमेंट और x। सबसे पहले तो आपने ये वाला जो यहाँ पे है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से ओपन करना है, x प्लस जेड डॉट वाई प्लस जेड, और ये वाली टर्म भी y प्लस जेड डॉट वाई प्लस एक्स। पहले तो आपने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से ओपन कर दिया। अब आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है और फिर इन दोनों को भी हमने रहने देना। फर्स्ट हमने इनको मल्टीप्लाई किया, एक्स वाई प्लस वाई जेड
प्लस एक्स जेड प्लस जेड जेड का जेड आ गया। यहाँ पे हम स्क्वायर नहीं लिखते, सेम टर्म मल्टीप्लाई करने पर सेम टर्म आ जाएगी, वाई प्लस जेड कॉम्प्लीमेंट एक्स प्लस वाई एज इट इज। अब यहाँ पे देखो, अगर मैं इन तीनों टर्म में जेड कॉमन ले लेती हूँ, पहले तो मैंने इसमें कॉमन लिया तो एक्स प्लस वन वन आ गया, फिर जैसे एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड आ गया, अदर टर्म एज इट इज। ओके, अब उसके बाद मैंने इन दोनों को डिस्ट्रीब्यूटिव से ओपन कर देना। एक्स वाई 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 आ गया, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर नहीं होता, यहाँ पे दो टर्म सेम टर्म मल्टीप्लाई हो रही है तो हम एक ही बार लिखते हैं। नेक्स्ट इज आपका वाई जेड प्लस वाई जेड एक्स वाई जेड कॉम्प्लीमेंट वाई जेड जेड कॉम्प्लीमेंट और जेड जेड कॉम्प्लीमेंट। जहाँ पे कॉम्प्लीमेंट और उसका टर्म मल्टीप्लाई हो रही वो तो आपकी ज़ीरो हो गई। यहाँ पे आपने इन दोनों टर्म्स में, जैसे यहाँ पे एक्स वाई था कॉमन लिया, वन प्लस जेड कॉम्प्लीमेंट वन के इक्वल आ गया, तो एक्स वाई प्लस वाई जेड ये वाली टर्म, और ऑलरेडी मेरे पास था एक्स प्लस वाई जो मेरा एक टर्म रह गई थी। देन आई अगेन ओपन विथ, then I take xy common in first three terms, one is left xy plus yz। पहले मैंने इसको सिंप्लीफाई किया, अब मैंने इसको करना कैनोनिकल पीओएस फॉर्म में। पीओएस फॉर्म ये कह रही है कि मेरे पास मेनली थ्री वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं। सबसे पहले y कॉमन लिया, देन x प्लस जेड के प्रोडक्ट ऑफ सम में करना चाहिए, तो एक मेरा सम आ गया, एक मेरा y आ गया, तो पहले मैंने इस फॉर्म में लिख लिया कि दो टर्म्स को मैंने मल्टीप्लाई किया। अब देखो, तीनों वेरिएबल मेरे y के साथ भी होने चाहिए, तीनों वेरिएबल मेरे x और z के साथ भी होने चाहिए। y के साथ मेरा x z मिसिंग है और x प्लस z के साथ मेरा y मिसिंग है, तो जहाँ पे मिसिंग है हम प्लस ज़ीरो कर लेते हैं। यहाँ पे y प्लस ज़ीरो और x प्लस ज़ीरो प्लस z। अब जो यहाँ पे ज़ीरो था तो उसको a को x बनाना था, a को z बनाना था, x कॉम्प्लीमेंट z कॉम्प्लीमेंट, और यहाँ पे मिसिंग था y, तो y को हमने ले लिया y एंड y कॉम्प्लीमेंट। उसके बाद मुझे क्या करना है, इनको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से ओपन कर देना है। पहले y x z आ जाएगा, फिर आपका आएगा y x y z कॉम्प्लीमेंट, फिर आएगा y x कॉम्प्लीमेंट z, फिर y x कॉम्प्लीमेंट z कॉम्प्लीमेंट। तो चार टर्म्स बन गई यहाँ से। नेक्स्ट वाली टर्म से दो टर्म बनी, x y z और x y कॉम्प्लीमेंट x प्लस y कॉम्प्लीमेंट प्लस z। जब सारी टर्म ओपन होगी तो हमने देख लेना कोई रिपीट तो नहीं हो रही। यस, ये टर्म और ये टर्म रिपीट हो रही है, इसको एक ही बार लिखना है, अदर एक्सप्रेशन को एज इट इज, दैट इज माई रिक्वायर्ड आंसर। उसके बाद जो है आपका डुअलिटी हम ऑलरेडी कर चुके हैं, डॉट को हमने प्लस में चेंज करना और प्लस को डॉट में। उसके बाद जो मेरी टर्म है, कॉम्बिनेशन लॉजिक सर्किट विथ थ्री इनपुट्स पी क्यू आर प्रोड्यूसेस वन इफ एंड ओनली इफ एन ऑड नंबर ऑफ जीरोस आर इनपुट। तो मैंने इसका पहले ट्रुथ टेबल बनाना है कि अगर मेरी थ्री इनपुट्स हैं तो अगर ट्रू है तो वन आएगा, अगर कोई मेरा सिग्नल नहीं आ रहा तो ज़ीरो आ जाएगा। तो इसका मैंने पहले एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना है, फिर उसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो इसका सबसे पहले जो मैंने पी क्यू आर में थ्री इनपुट्स लिए, अब आउटपुट 1 1 1 1, क्योंकि यहाँ पे आउटपुट मेंशन ऑलरेडी वहाँ पे आपके क्वेश्चन में था। अगर हम बैक पे जाएं तो यहाँ पे था आपका सर्किट विथ थ्री इनपुट्स पी क्यू आर प्रोड्यूसेस 1 इफ एंड ओनली इफ एन ऑड नंबर ऑफ जीरोस आर इनपुट। अगर ज़ीरो ऑड है तो 1 आएगा, ओके, और थ्री इनपुट्स होंगे तो तभी 1 आएगा, ओके। उसके बाद हमने उसके अकॉर्डिंग टू ट्रुथ टेबल बनाया जो मेरी कंडीशन थी। अब यहाँ पे ऑड की क्वांटिटी आ गई ज़ीरो की, तो मेरी आउटपुट क्या आ गई 1, ओके। ज़ीरो ऑड होगी तो मेरी आउटपुट क्या आएगी 1। जहाँ जहाँ पे मेरी ज़ीरो की ऑड क्वांटिटी है वहाँ पे मेरी आउटपुट 1 आएगी। तो जो मेरे क्वेश्चन में था कि आउटपुट वहीं पे 1 होगी जहाँ पे एक्सप्रेशन में मेरी ज़ीरो की ऑड क्वांटिटी है। तो जहाँ जहाँ पे 1 आ गया वहाँ पे आपकी मिन टर्म्स बन जाएंगी पी कॉम्प्लीमेंट क्यू कॉम्प्लीमेंट आर, और जहाँ पे ज़ीरो है वहाँ पे आपकी मैक्स टर्म विद प्लस, क्योंकि मैक्स टर्म में क्या होता है, ज़ीरो एक्चुअल नंबर होता है और कॉम्प्लीमेंट को हम 1 कंसिडर करते हैं, तो वो उसका ऑपोजिट आ जाएगा। तो ये एक तरफ मेरी मिन टर्म्स आ गई और यहाँ पे मैक्स टर्म आ गई। तो अगर मैंने एसओपी बनाना है तो ये मेरा एसओपी एक्सप्रेशन है, ये वाला मेरा पीओएस एक्सप्रेशन है। अब मेरे पास था कि ये जो मेरा पीओएस एक्सप्रेशन है
ओके तो ये मुझे वेरीफाई करना है कि अगर मैं इस एसओपी एक्सप्रेशन का यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट ले लूँ तो क्या मेरा ये एग्जैक्टली पीओएस बनता है। तो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट लिया, 1 बाय 1 करके आपने जैसे डी मॉर्गन्स लॉ लगाया, धीरे धीरे ओपन किया, लास्ट में आपका वही पीओएस एक्सप्रेशन आ जाएगा। उसके बाद है मेरा कैनोनिकल पीओएस फॉर्म। अभी जस्ट हमने किया था कि जब मेरे पास एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, एक फंक्शन दिया हुआ है, तो ये मेरा दिया है आपका यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म दिया है। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, इसको प्रॉपर फॉर्म में चेंज करना है, प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म में, क्योंकि इसमें मिसिंग वेरिएबल्स हैं। प्रोडक्ट ऑफ सम क्या कहती है कि जितनी इनपुट्स हैं हर एक में जो ऐड हो रहे हैं उसमें तीनों इनपुट्स होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे z मिसिंग है, यहाँ पे x मिसिंग है, तो जो जो मिसिंग है वहाँ पे हम 0 कंसिडर कर लेंगे और 0 को चेंज किया z और x में। देन आई अप्लाई डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ओपन इट, दैट इज माई रिक्वायर्ड आंसर। उसके बाद मेरे पास एक जो आपका एक क्वेश्चन आता है 10 मार्क्स का, उसमें एक प्रॉब्लम आपको गिवन थी कि एक फैक्ट्री में 1200 टन्स का रॉ मटेरियल चाहिए और उसमें कंडीशन ये है कि रॉ मटेरियल 1200 का होना चाहिए और 100 वर्कर्स होंगे तभी प्रोडक्शन स्टार्ट होगी। तो इसमें 3 सप्लायर्स हैं जो रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं। ए की कैपेसिटी 600 की है, बी की 800 की है और सी की 1250 टन्स रॉ मटेरियल प्रोवाइड करने की भी है। और एक मेरा 4th इनपुट आ गया डी। डी इनपुट ये कह रहा है कि मेरे 100 वर्कर्स होनी चाहिए। अगर 100 वर्कर्स होंगे तभी मेरी प्रोडक्शन स्टार्ट होगी, मतलब 100 वर्कर्स के साथ 1200 टन का रॉ मटेरियल भी चाहिए। जब ये दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तभी मेरे पास प्रोडक्शन स्टार्ट होगी, अदरवाइज मेरी प्रोडक्शन 0 आ जाएगी। इसको आपने एसओपी एक्सप्रेशन बनाना है, फिर इसको के मैप से आपको शो ऑफ भी करना है। पहले तो जो आपकी 4 इनपुट्स थे इसको आपने बाइनरी नंबर्स में लिख लेना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। आर थी आपकी आउटपुट। अब आउटपुट क्या कहती है कि मेरे 100 वर्कर्स होंगे और 1200 टन का रॉ मटेरियल, दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तभी मेरी आउटपुट आएगी। तो यहाँ पे सिर्फ 100 वर्कर्स है, 1 मीन्स 100 वर्कर्स, तो वहाँ पे मेरे पर अभी सप्लायर नहीं है, रॉ मटेरियल नहीं है, तो आउटपुट 0। यहाँ पे आउटपुट से कहाँ पे 1 होगी, सी मेरा 1250 टन का रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर रहा था, दैट मीन्स रॉ मटेरियल की कंडीशन पूरी होगी यहाँ पर, ओके, और मेरे 100 वर्कर्स की कंडीशन पूरी होगी, तो यहाँ पे मेरी आउटपुट 1 आ गई। अब यहाँ पे क्या है कि जहाँ पे डी 0 है वहाँ तो दूसरे चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। जहाँ पे डी आपका 1 आ रहा है उसके साथ आपने चेक करना है कि जो ए बी सी में जो सप्लायर्स हैं क्या वो टोटल 1200 टन का रॉ मटेरियल मिलके प्रोवाइड कर रहे हैं, नहीं। इसकी जो आपका बी था 800, तो 1200 की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती यहाँ पर। तो जहाँ पे 1200 की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती तो मेरी आउटपुट 0 रहेगी। अब यहाँ पे क्या है, 2 सप्लायर्स हैं बी सी, 1200 से ज़्यादा ही है और 100 वर्कर्स भी हैं, तो मेरी आउटपुट स्टार्ट हो जाएगी प्रोडक्शन। यहाँ पे आपका 100 वर्कर्स है, अब ए तो 600 प्रोवाइड कर रहा है रॉ मटेरियल, तो मेरी प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं होगी। अब यहाँ पे भी आपके 100 वर्कर्स हैं और ए और सी मिलके 1200 का रॉ मटेरियल क्रॉस कर रहे हैं, तब मेरी प्रोडक्शन क्या होगी, स्टार्ट हो जाएगी। तो अल्टीमेटली यहाँ पे 100 वर्कर्स हैं, अगर 2 भी मिलके सप्लायर जैसे ए और बी मिलके 600 एंड 800 मिलके आपका 1400 हो जाता है, 1200 को क्रॉस कर जाता है रॉ मटेरियल, भले ही 2 मिलके कर रहे हो और 100 वर्कर्स की कंडीशन हो, तभी मेरी आउटपुट क्या होगी, मेरी प्रोडक्शन स्टार्ट होगी। तो लास्ट में तो जहाँ जहाँ पे 1 आया वहाँ पे हम मिन टर्म्स मेंशन कर देंगे। उसके बाद मेरा सम ऑफ प्रोडक्ट जहाँ पे आया था उसको मैंने सम ऑफ प्रोडक्ट में मेंशन किया और उसी सम ऑफ प्रोडक्ट को मैंने यहाँ पे कार्नोट मैप में शो ऑफ किया। तो जहाँ जहाँ पे मेरा ये एक्सप्रेशन ऊपर आ रहा था, बी कॉम्प्लीमेंट सी डी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी सी डी, ए बी सी डी एंड ए बी सी कॉम्प्लीमेंट डी और ए बी सी, वहाँ पे मैंने डेसिमल नंबर, तो यहाँ पे डेसिमल नंबर नहीं है, एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग टू मैंने 1 मार्क कर दिया। एक क्वाड और एक पेयर पिक किया, जिससे मेरी टर्म, क्वाड से मेरी टर्म आई सी डी और पेयर से मेरी टर्म आई ए बी डी, और इनको हमने ऐड कर दिया, दैट इज सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। उसके बाद जो मेरा 49 क्वेश्चन है उसमें आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में 3 इनपुट्स दिए हुए हैं, ओके, और आपको
3 आउटपुट दिए अलग अलग, P सेपरेट आउटपुट है, Q और R सेपरेट आउटपुट है। तो यहाँ पे आपको ये लिखा हुआ है कि ट्रुथ टेबल फॉर 3 कॉम्बिनेशन सर्किट विच द इनपुट इज 3 बिट नंबर एंड आउटपुट इज इट्स टूज कॉम्प्लीमेंट। टूज कॉम्प्लीमेंट की फॉर्म में आउटपुट है, वो ऑलरेडी आपके क्वेश्चन में गिवन है, हमने टूज कॉम्प्लीमेंट अभी यूज नहीं करना। तो सबसे पहले हमने इनका P का सम ऑफ प्रोडक्ट बनाना है, Q में जो 1 1 है उसका सम ऑफ प्रोडक्ट लेंगे और R का सम ऑफ प्रोडक्ट लेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने इनकी मिन टर्म्स लिख ली, P Q R की, जहाँ जहाँ पे 1 1 था वहाँ पे मैंने मिन टर्म में कन्वर्ट कर दिया, सम ऑफ प्रोडक्ट इनको ऐड कर दिया, P का सम ऑफ प्रोडक्ट, Q का सम ऑफ प्रोडक्ट एंड R का सम ऑफ प्रोडक्ट। उसके बाद जो P का सम ऑफ प्रोडक्ट का कार्नोट मैप को मेंशन करके हमने इसमें आपके 1 2 पेयर्स के बाद 1 किसी का के साथ भी पेयर नहीं बना रहा, तो मैंने 1 को अकेले ही ले लेना है। यहाँ पर हम 1 को ले सकते हैं अकेले जब मेरा पेयर नहीं बन रहा, बट हम 1 को छोड़ नहीं सकते। तो जो यहाँ पे जो आपका पेयर था 1 3, यहाँ पे आपकी टर्म मिली x कॉम्प्लीमेंट z, सेकेंड पेयर से x कॉम्प्लीमेंट y, देन थर्ड जो आपका था सिंगल 1 था, वहाँ पे आपको रो और कॉलम में लाके x y कॉम्प्लीमेंट z कॉम्प्लीमेंट। तो ये आपका रिड्यूस एक्सप्रेशन आ गया। इसी तरह से Q का भी मैंने 2 पेयर्स बने, उसमें y कॉम्प्लीमेंट z और y z कॉम्प्लीमेंट मिलके ये आपका सम ऑफ प्रोडक्ट एक्सप्रेशन आ गया। उसके बाद जो आपका R की वैल्यू थी कार्नोट मैप की, तो यहाँ पे आपने रो वाइज, और ये एक ही क्वाड बना है आपका, तो रो वाइज हमने टर्म्स को ऐड किया, कॉलम वाइज कॉलम्स को ऐड किया, तो मेरा एक्सप्रेशन आ गया z। तो रिड्यूस एक्सप्रेशन ऑफ R इज इक्वल टू z। एंड स्टे हेल्दी।